سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان، تمام 19 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھی۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں کی۔ 19 مجرموں کی اپیلوں کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں بھیجا گیا۔ رحم کی اپیل منظور ہونے کے بعد ان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی اپیلوں پر بھی قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیگر مجرمان کے بھی اپیل اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہماری منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ مجرمان بنو کینٹ، FC کینٹ پشاور، ISI آفس فیصل آباد پر حملوں میں ملوث تھے۔ جناح ہاؤس لاہور، راہوالی گیٹ گجرانوالہ پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ معافی پانے والے مجرموں کی فہرست بھی جاری۔ معافی پانے والے مجرمان کی رحم کی پٹیشن سامنے آ گئی۔ مجرمان نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ مجرم بلاول حسین نے اپیل میں تسلیم کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا بہت بڑی غلطی تھی، رحم کیا جائے اور معافی کی درخواست قبول کی جائے۔ مجرم سعید عالم نے بھی تسلیم کیا وہ ریاست کے خلاف کیے گئے غلط کاموں پر شرمندہ ہے۔ عاجزانہ درخواست ہے رحم کی درخواست قبول کر کے سزا معاف کی جائے۔ محمد سلیمان نے 9 مئی کے واقعات میں بعض افراد کے گمراہ کرنے کو تسلیم کیا۔ مجرم محمد الیاس نے رحم کی پٹیشن میں کہا 9 مئی کو ان کے عمل سے خاندان کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ مجرم یاسر نواز نے بھی اپنی درخواست میں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے والی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ میں اس کو اتنا پیش رفت نہیں سمجھتا۔ بیسیکلی 67 بندے تھے جس میں 19 کے لیے انہوں نے یہ کر دیا اور 48 نے اپنے اپیلیں فائل کی، اس کے مطابق ہوگا۔ صرف 19 لوگوں کی معافی کافی نہیں، بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، باقی 48 نے بھی اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے۔ کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہی غلط تھا، جن کی معافی کی بات ہو رہی ہے ان کی سزائیں ہی پوری ہو چکی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ معیشت کے اعداد و شمار بھی نیچے آ رہے ہیں، لیکن سب اچھا کا راگ الاپا جا رہا تھا۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات، PTI کے 3 مطالبات، بانی چیئرمین سمیت تمام کارکنان کی رہائی کا مطالبہ، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سیاسی قیدیوں پر مزید کیس قائم نہ کرنے اور ضمانتوں میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا بھی کہہ دیا۔ حکومت اور PTI کی دوسری بیٹھک کا اعلامیہ جاری، مطالبات تحریری طور پر دینے کے لیے بانی سے ملاقات اور 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق آج صرف زبانی مطالبات آئے، تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے بانی سے مشاورت کا کہا ہے۔ PTI کو بانی چیئرمین سے ملاقات کی سہولت دیں گے۔ تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ تحریری ڈیمانڈز آنے کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے۔ عرفان صدیقی نے بتایا کہ اپوزیشن کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ عمر ایوب نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور جمہوری استحکام کی بات کی۔ مثبت گفتگو ہونا ہی مثبت پیش رفت ہے۔ مذاکرات میں قومی مفاد مقدم رکھا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے اپوزیشن کے مثبت کردار کی تعریف، کہا سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے اجلاس میں معیشت اور دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق بھی بات ہوگی۔ اسپیکر کی زیر صدارت بیٹھک میں دونوں کمیٹیوں کے ارکان کی شرکت، وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور بھی شریک ہوئے۔ مذاکرات سے قبل اپوزیشن ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی کی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی بانی PTI کو بنی گالہ منتقل کرنے کی خبروں کی تردید۔ مذاکراتی بیٹھک کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI کی منتقلی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کمیٹی نے بانی اور کارکنان کی رہائی کا کہا، ہم نے جواب دیا جیلوں سے رہائی عدالت کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ اس پر عمر ایوب بولے کہ حکومت کارکنان کی رہائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایک سوال پر رانا ثنا نے کہا کہ فوج کا اپنا پروسیجر ہے، وہ اپنے نظام کے تحت سزا دیتی اور معاف کرتی ہے۔ مزید لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، شاید ان کو بھی معافی مل جائے۔ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر کا کہنا تھا آج دونوں جانب سے مثبت رویہ رہا، اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا انتظار ہے۔ عمران خان کا اختیار ہے، عمران خان کے ہی حکم کے اوپر یہ جو ہے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور عمران خان ہی فیصلہ کرے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
मुज़ाकरात में जो भी होगा बानी पीटीआई की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत ठीक होगी, तमाम मामलात मिल बैठ कर हल होने चाहिए। अली अमीन ने 9 मई के 19 मुजरिमों की रिहाई खुशाइंद करार दे दी। बानी के बनी गाला में शिफ्ट होने से मुतालिक सवाल पर अली अमीन ने कहा कि जो कुछ होगा सबके सामने रखेंगे। रुकन कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा नजर आई, लगता है वो चाहते हैं मसाइल हल हों, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते, अदालतों से ही रिलीफ लेंगे। बस ये कहा है कि सियासी केसेस ना बनाएं और जमानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस की बुनियाद ही नहीं, आईन और कानून की हुक्मरानी होने पर तमाम कारकुनान रिहा होंगे। ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाअल्लाह उसकी नवीद है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। 2025 मौशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल, तरक्की, खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी करार दे दिया। मजीद कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए सबको एक पेज पर आना होगा। 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार का सामना रहा, इज्तिमाई काविशों से चैलेंजेस से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया। 5 माह में तरसीलात ज़र 34% बढ़ी, ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब तक पहुँच गए। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ कई MOUs हुए। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक से भी मुआहदे हुए हैं। सब चाहते हैं पाकिस्तान से रवाबित बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई भी खत्म हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पूरी हिम्मत और कोशिश से बिजली बिल्स में रिलीफ दिया, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ चुका, महंगाई मजीद कम हो गई। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरिफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक बानी PTI की दरखास्त पर भी समाअत 7 जनवरी को होगी। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ केस 10 जनवरी को मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी 10 जनवरी को होगी। कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद हालात में बेहतरी ना आई, रास्ते बदस्तूर बंद, अशिया की सप्लाई भी बहाल ना हो सकी। 4 मकामात पर धरने भी जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की धरने वालों पर तनकीद, कहा अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमती सतह पर पारा चिनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को जाएगा। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कोरम के तनाज़े पर मुल्क दुश्मन अनासर मुलव्वस हैं। दुआ है अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो। हुकूमत कोरम के मसले पर संजीदा होती तो धरने ही ना होते। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर जल्द सदर और वज़ीर आज़म से बात करूंगा। बानी PTI ने कहा है उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई है, मगर जब तक बाकी लोग रिहा नहीं होते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। बानी के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, वकील सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस गवाह पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी, समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अली अमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख की है। गंडापुर के वकील का कहना है कि अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है, हुकूमत को IT के शोबे पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम और मुल्क की बात की, हम किसी सियासी जमात पर तनकीद नहीं करते। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास, पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूक की हुक्म पर बरस पड़ी। कहा क्या अवाम और हम इंटरनेट के सुस्त होने पर झूठ बोल रहे हैं? हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आते, क्या यहाँ बैठे मेंबरान का इंटरनेट चलता है? मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता, वॉइस नोट जाता है ना आता है। क्या सिर्फ हुकूमत सच बोलती है? खुदा के वास्ते सच बोले, बैठकर मामलात को हल करें। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले कि VPN को कायदा कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम VPN पर पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। आइंदा इजलास में चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया गया। हमारे जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कस्टमर को कोई भी चीज़ भेजनी हो या डिज़ाइन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मटेरियल, उनको डाउनलोड करना और अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सबब बनता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। मोबाइल ऑन करते हैं, डाटा उसका ऑन करते हैं, वो कहते हैं जी नो इंटरनेट। पता नहीं ये मसाइल गवर्नमेंट कब हल करेगी। जब से ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया, US के जो हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स देने बंद कर दिए हैं प्रॉपर्ली। स्लो इंटरनेट का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार जो की तू बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 60% इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। 2024 में मुल्क की 38% आबादी 4G इंटरनेट से महरूम रही। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस्लामाबाद का एक और फलाह-ए-आमा का मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास के काम अगले 5 रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर दाखिला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की किसानों के लिए सहूलत, ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी। सूबे में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार और मयार की मॉनिटरिंग के लिए नया इक़दाम। तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज ने अवामी मनसूबों के लिए 400 से ज़ायद अरब रुपए का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है। पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ भी जारी है। बरतानिया में मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिए। मैनचेस्टर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ब्रेडफोर्ड में बारिश और सैलाब से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। स्कॉटलैंड में आज और कल बर्फबारी का इम्कान।